गलगोटियास यूनिवर्सिटी से आपको सबको सादर प्रणाम। एंड आज हम इधर उपस्थित हुए to announce our Galgotias Ideathon. As you know, Galgotias University is known for its quality processes, be it education, research, or innovation. So, in that process, Galgotias University has also established what is called a Section 8 company, right, to look after innovation. That is called as Galgotias Incubation Center for Research, Innovation, Startups, and Entrepreneurship. So that is called a GIC RISE. So this is an independent company which operates in the campus, university campus, promotes students' innovation, startups, and other related areas in order to make them entrepreneurs. So the entire idea is to make the country strong, right, developed, and self-reliant. So in that context, this is independently managed, and for that we have a person specifically nominated and who takes care of all these innovations, startups, and entrepreneurship ideas. And I request him to really brief about this GIC RISE motto and the idea behind what is called as Galgotias Ideathon. So over to Kamal Kishore, our CEO for GIC RISE. Thank you so much, sir. First of all, I would like to thanks to our business leaders, Honorable Chancellor Sir Sundari Bhutia ji, Honorable CEO Sir Dr. Bhutia ji, who's the commitment to create a culture of innovation and entrepreneurship inside the university has led the foundation of the GIC RISE, as sir already told to us. So we are conducting today's event, Galgotias Ideathon. It is going to be conducted from tomorrow and the day after tomorrow, from 4th and 5th March. So in this event, we have received 250 applications from Pan India. Out of 250 applications, we have done like the many of the round screening. So after the screening, we have selected only 25 applications based on the recommendations of the jury members, which has been formed by our university only. Under this, we have received the diversity of the applications from various states of the India. We have received approximately 20 states are participating in this ideathon. And if I talk about the investment partners, so we have investment partner India Accelerator, C Fund, Fluid Venture. Along with this Fluid Venture, there is a kind of a US India blockchain, and Balance Ventures is also there as a investment partner. If I talk about the ecosystem partners, so for ecosystem partner, ACI CIT University Foundation is there, and also UPS Runway Incubator from Dehradun is working as an incubator, as an ecosystem partner. For outreach, we have Caller Desk with us, who are responsible for the outreach partner. In this event, the chief guest would be Dr. Vipin. He's the chief scientist and former director of National Innovation Foundation of India, Department of Science and Technology, Government of India. Guest of honor would be Mr. Amitabh Nath, CEO of Miti Bhashini Division, Government of India. Other guests are Mr. Mukesh Kestwal, Chief Innovation Officer of IIM IIT Ropar. Dr. Radhika Trika, IIM IIT Ropar. She's a Chief Executive Officer. VC capitalist, Mr. Agam Gupta from C Fund is participating in this. Mr. Arindam Mukhopadhyay from India Accelerator is participating in this event. So we have received good interest also from the VC side for the investments also. In this event, under sprint edition, IIT Ropar has given a commitment of investment up to 25 lakh rupees, which is going to be happen in these 2 days only. From the day after tomorrow, we have a clear picture who are the starters has been selected for the funding, for the real-time funding at the same place. आगे इसके आगे के लिए अब हम पीवीसी सर से अनुरोध करूंगा पीवीसी सर से Further it on. So this ideathon is going to be a game changer on the campus. It's not only open to हमारा बच्चे नहीं है सब पूरा इंडिया से पूरा इंडिया में 250 प्लस 100 प्लस इंडस्ट्री पार्टिसिपेट
pan-India से. 100 plus universities. 100 plus universities, 250 participants. तो ये हमारे ऑनरेबल वीसी साहब और हमारे सीईओ ऑफ जेआईसी राइस, इन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में आपको जो बताया है, इसमें 2 दिन का प्रोग्राम है जिसमें 250 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और 100 प्लस 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का पार्टिसिपेशन है इसमें. तो इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, ये सभी राज्य हैं जो इन्होंने हमने लिस्टिंग की है जहाँ से ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं. और ये 2 दिन का प्रोग्राम है जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस तरह से गाइडलाइंस होता है, तो ये डे नाइट में जो हमारी इवेंट होती है उसी तरह का ये प्रोग्राम है, जिसमें कि जैसे हैकाथन जो कराती है AICTE, इसी तरह से ये आइडियाथन है. तो सभी जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो टीम्स होंगी, उनसे उनके आइडियाज जो होंगे उनको एसेस किया जाएगा. और जैसा कि बताया कि इसमें साइंटिस्ट और बहुत सारे ग्रेट एकेडमिशियंस फ्रॉम IITs, ये सभी इसमें आ रहे हैं जैसे इनॉग्रेशन में. और जो एसेसर्स होंगे वो भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशन से आके इन बच्चों को, इन पार्टिसिपेंट्स को एसेस करेंगे. तो ये बेसिकली प्रोग्राम है. इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ये एक दूसरे के आइडियाज़ को समझेंगे और भविष्य में ये कोलैबोरेट करके कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जो हमारे विकसित भारत में मदद करेंगे. तो जो विकसित भारत का जो सपना है वो ये यूनिवर्सिटी के बच्चों से ही पूरा होने वाला है. और यूनिवर्सिटी के जो ये बच्चे हैं, जो इनका आइडिया है, यही आगे ये जो हमारे फ्यूचर हैं कंट्री के, यही पूरा करेंगे बाई 2047. तो यही है. तो ये हमारी यूनिवर्सिटी इस मिशन में लगी हुई है कि जिस ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रिसर्च हो, तो यूनिवर्सिटीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे देश के विकसित होने में बहुत भूमिका रखेगा. और हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्पेशली इस दिशा में पूरी तरह से लगी हुई है. तो आप देख रहे होंगे हैकाथन, आइडियाथन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डिवीजन और बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस. और ये आजकल हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और ये जितने भी इवेंट्स कराते हैं, ये हमारा अभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे भी चला गया है. तो बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से हमने कोलैबोरेट किया है. जो अभी देख रहे होंगे जितने भी इवेंट्स होती हैं वो इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ कर रहे हैं, जिससे कि ये हमारी यूनिवर्सिटी ट्रूली ग्लोबल यूनिवर्सिटी बन सके. और भविष्य में जो हमारा लक्ष्य है कि ये यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाए. और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे जो हमारा एक प्रोजेक्ट है G-SCALE, गलगोटिया स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिव लर्निंग इकोसिस्टम, जिसमें बेसिकली ये है कि ये सारी एजुकेशन है वो स्टूडेंट के हिसाब से हो, इसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड. और इसके लिए आपने देखा होगा आजकल का जो टाइम है वो AI का है. तो हमारे CEO जो हैं उन्होंने एक नया ब्लॉक जो है जो स्टार्ट किया, उसमें सारा जो सेटअप है दैट इज AI ड्रिवन, उस ब्लॉक का नाम दिया है AI एंड डेटा साइंस ब्लॉक, आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस ब्लॉक. उस ब्लॉक में सारा का सारा ऑटोमेशन है. वहाँ की जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर है जिसको हम लाइब्रेरी कहते थे, तो वो अब हमने उसको बोला नॉलेज रिसोर्स सेंटर, जिसमें कि AI ड्रिवन 4 लैब्स आ रही हैं जो इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, लाइक विप्रो, एनवीडिया, HP, इंटेल, ऐसी कंपनियां आके वहाँ अपना AI लैब सेट कर रही हैं, जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वहाँ पर वो रिसर्च कर AI ड्रिवन रिसर्च कर पाएंगे. और हमने अभी लाइब्रेरी में ऐसे रोबोट्स ऑर्डर किए हुए हैं कि जो वो जो बुक्स है या डिजिटल कंटेंट है वो आप उस रोबोट को बताएंगे और वो आपको एक्सेस करके देगा. तो ये बहुत सारे नए इनिशिएटिव हैं हमारी यूनिवर्सिटी ले रही है इन ऑर्डर टू बिकम ग्लोबल यूनिवर्सिटी. यही
मिशन है। ये एक इवेंट उसी का एक पार्ट है। तो मैं इसी इवेंट के बारे में यही बताना चाहता हूँ, और बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसमें क्या कोई टॉपिक दिया जाएगा आइडिया में, उस टॉपिक भी दिया जाएगा कि अपना ही आइडिया देंगे? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए इसमें एक्चुअली जो एप्लीकेशंस होंगी वो सेक्टर वाइज होंगी। काइंड ऑफ हेल्थ टेक की, इंडस्ट्री 4.0 की, एग्री टेक है, आईओटी बेस्ड कोई सॉल्यूशन है, एड टेक कोई सॉल्यूशन है, तो उसी के बेसिस पे बच्चा अपने अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ जो स्केलिंग होगी, स्केलिंग इसमें 3 पैरामीटर्स से होती है। पहला होता है पीओसी टू एमवीपी, आइडिएशन टू पीओसी, पीओसी टू एमवीपी और एमवीपी टू जीटीएम। इन 3 स्टेजेस के बेसिस पे उनकी स्क्रीनिंग होगी। इसमें डेडिकेटेड जूरी मेंबर्स होंगे, हमारे इंटरनल भी होंगे, एक्सटर्नल भी होंगे। एक्सटर्नल जो होंगे वो डिफरेंट वीसीज से होंगे, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। ये हमारे पैरामीटर्स में रहेगा। और उसमें 5 पॉइंट्स का हम लोगों ने पैरामीटर रखा, आउट ऑफ 15 की स्कोरिंग। जो आइडिया इधर जीतेगा देन वो फंड भी लेके जाएगा, फंड भी भी अलॉट हो लेके जाएगा। Yes. दैट इज व्हाट 2 डेज में जितने सारा स्किल सेट से वो सब लोग आ रहे हैं, सो ये उम्मीद लेकर आ रहे हैं। एंड दो एक्चुअली दिस ऑल द पीपल हु आर we are calling them a chief guests and guests of honor, other things, they are experts themselves into incubation and innovation, खुद right? So they are very much involved and they very much assess them at the same time. एंड सी फंड एक आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी फॉर्म है, सो टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो हमारा ये विपिन जी आ रहा है, सो ही वाज साइंटिस्ट एंड former director of National Innovation Foundation, NIF. So actually he is specialist in in situ innovation. In situ innovation is something like that, research and experimentation साथ साथ में जाता है. So then he was instrumental in setting up so many startups in non-urban areas. So such kind of persons who are going to come here and try to interact with the people, students. So students भी हो और बाहर से भी आ रहे हैं. So आपने सुन लिया ना. So there are about 23 states से participation हो रहा है. So इसमें बेहतरीन 3 है. पहला तो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश. So that is around 20.5%. Then followed by Maharashtra and Delhi. Maharashtra is also known for good for innovations. So इसलिए this actually is a learning platform for all the people and also an exposure for Galgotians itself. So Galgotians भी participate करते हैं because judges हमारा कुछ नहीं होता है. So इसलिए ये fair ground पे हम ये आइडिया तान लेके जा रहे हैं. So it is एक हमारा मकसद, यूनिवर्सिटी का मकसद ये है एम्प्लॉयमेंट देना, एक है प्लेसमेंट जरिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, स्किल बढ़ाना, एक तरीका हो गया. ये एंटरप्रेन्योरशिप पे अभी जा रहे हैं. सो ताकि ये आत्मनिर्भर बने, बच्चे स्टार्टअप्स स्टार्ट करें बिफोर दे लीव द कैंपस. वी वांट देम टू गेट इन. So now so far we have 250 plus startups by our students and passed out and alumni and other things. Now everywhere we have kept a target of 100 startups. So all these events not only motivate these students who are coming in, right, and become entrepreneurs, and ताकि हमारा विजन 2047 का विकसित भारत साकार बने, right, बच्चे उसमें भाग ले. So not as an employee, so एम्प्लॉयर. सो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप वो बने, वो उम्मीद लेके हम जा रहे हैं. सो बहुत सारा एंकरेजमेंट हमको उधर से भी मिल रहा है. ये पार्टिसिपेट देने वाले बने, हाँ रोजगार देने वाले. यस सर इसमें जो मीडिया आमंत्रण है उसमें महिलाओं के लिए बात की गई है डेवलपमेंट की जी. इसमें एक्चुअली हम लोगों ने वुमेन लेड स्टार्टअप को भी टारगेट किया है. वुमेन लेड स्टार्टअप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है कि अगर किसी भी महिला के पास उस कंपनी में अगर वो को-फाउंडर और उसके बाद 27% की इक्विटी है, देन वो स्टार्टअप वुमेन लेड स्टार्टअप कहलाता है. इसमें वुमेन लेड स्टार्टअप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो जब वुमेन लेड स्टार्टअप में गवर्नमेंट की फंडिंग के जो चांसेस तो 50% एक्स्ट्रा हो जाते हैं. जैसे अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ग्रांट की बात करूं, 5 लाख रुपए प्रोडक्ट ग्रांट मिलती है, बट अगर वुमेन लेड स्टार्टअप उसमें अप्लाई करेगा तो वो 7.5 लाख हो जाएगी. ऑटोमेटिकली 50% का हाइक गवर्नमेंट के मतलब पोर्टल पे ऐड हो चुका है. इसलिए वुमेन लेड स्टार्टअप को हम सपोर्ट कर रहे हैं. और ये जो गलगोटियाज आइडियाथॉन है, वीसीसी एंड पीवीसी सर का ब्रेन चाइल्ड है. सर का आप दोनों का ही कहना था कि हम यहाँ कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कि रियल टाइम इन्वेस्टमेंट हो. अब तक हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट किए, सब प्राइज मनी होता था. प्राइज मनी
कब आता ना बच्चा उसको यूटिलाइज, कुछ बच्चे करते थे, कुछ बच्चे से प्रोजेक्ट उसको फिनिश कर लेकिन देते। अभी सी फंडिंग की जो बात की वो किस तरह से? ये जो सीड फंडिंग होगा ये रियल टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। Okay. परसों तक में हमारे पास वो पिक्चर्स होंगी कि जो पार्टिसिपेशन है उनको कितना कितना फंड हम दे रहे हैं यहाँ से। नहीं तो सर वो बच्चे क्या खुद खुद के लिए यूज बच्चे वो सारे स्टार्टअप के लिए यूज Startup। करेंगे, कंपनी के लिए, अपनी कंपनी जो कंपनी उन्होंने बनाई उस कंपनी के लिए यूज करेंगे। इधर गलगोटियास यूनिवर्सिटी में एक इकोसिस्टम बना दिया गया, सो थ्रू जीएससी राइज हर एक बच्चे को विल गिव देम ऑल नॉलेज रिक्वायर्ड टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर। सो फर्स्ट ईयर से चालू होते हैं, सो द एंटायर सेंटर बच्चों को ट्रेन करता है कैसे इनोवेशन पे जाना। नहीं नहीं, नॉट ओनली यू फैकल्टी सब कुछ बच्चों को अब मदद करना पड़ेगा, एंटायर सपोर्ट सिस्टम इधर जीएससी राइज, दैट इज द मेन इंटेंट वो है। सो आगे बढ़ के ये भी बढ़े, सो हमारा सेक्शन 8 कंपनी बढ़े अपने आप, सो यूपी में एक मॉडल सेक्शन 8 कंपनी बने, दैट्स व्हाट हमारा उम्मीद है। शिक्षा के साथ साथ जॉब भी मैं उद्देश्य हाँ हाँ, शिक्षा के साथ साथ जॉब जॉब तो होता है, जॉब क्रिएटर को एंटरप्रेन्योर बनाना जॉब है। क्रिएटर बनाए, व्यक्तिगत हाँ जॉब देने वाला, जॉब लेने वाला नहीं है। जैसे आपने 4 आदमी